Here we'll start with again question number 1. So here first question for this lecture is given a set A. Set A is given whose elements are minus 1, 0, 2, 5, 6, 11. This is one given set A. Also, we are given another set B, whose elements are minus 2, minus 1, 0, 0, 18, 18, 28, and 108. These are the elements of set B. And we are also given one function. We are given one function f of x. That function is x square minus x minus 2. So here we have to check f of a is equal to b or not, and also find the value of f of a. है ना? तो कोई दो क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन है. f of a को फाइंड करेंगे तभी जाके उसको b के साथ कंपेयर करवाएंगे. So here question is find the value of f of a, and after finding the value of f of a, done, we have to compare that value of f of a with this b. So now let's start with given function. F of x is given. So this is f of x is equal to एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. अभी आपको देखना है कि एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ. एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ. ए इज वन सेट whose elements are minus 1, 0, 2, 5, 6, 11. So here we have to find the value of this function for all the elements of this set A. And the elements of set A are minus 2, 0, 2. So first element is minus 1. So we'll find f of minus 1. Clear? So f of minus 1 is minus 1 square minus, अभी x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2, माइनस वन तो पहले से ही थी और x की वैल्यू माइनस 1 लेनी है ना, क्योंकि x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस 1 से. सो दिस इज इक्वल टू, यहीं पर लिखते हैं. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस 2. सो दिस इज इक्वल टू 0. So f of minus 1 is 0. Now second element f of 0. So f of 0 is there. है ना, थोड़ा कलरफुल करते हैं. तो f of 0, तो ये हो गया 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2. तो सब 0 0 स्क्वायर आ रहा है तो ये हो गया माइनस 2. डन, माइनस 2. उसके बाद x की नेक्स्ट वैल्यू माइनस 1 आ गई, 0 आ गई और उसके बाद 2. सो f of 2, तो f of 2 क्या होगा, जहां पर भी हमारा x है वहां पर 2 पुट करना है. तो इट्स अ 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2. तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 2. तो ये 0 आ गया. और आगे बढ़ते हैं. f of 5, f of 5, f of 5. So this one is 5, x की प्लेस पर 5 रखना है. So this one is 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2. 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7. 25 में से 7 करो तो कितना होगा 18. So 18. Now next one is f of 6. f of 6 निकालना है. So f of 6, जहां पर x होगा वहां पर 6 रखेंगे. तो इट्स अ 6 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2. और 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 8. तो ये हो गया 28, है ना. देखो 18 28 सारे यही नंबर आ रहे हैं. 18 28 0 आ गया, उसके बाद माइनस 2 आ गया और उसके बाद कुछ नहीं आया. अभी देखते हैं क्या 108 आने वाला है. सो एफ ऑफ 11, है ना. देखो माइनस 1 0 2 5 6 माइनस 1 0 2 5 6, अभी 11 की बारी. सो एफ ऑफ 11, सो एफ ऑफ 11 इज 11 स्क्वायर माइनस 11 माइनस 2. 11 स्क्वायर is 121 minus 13. So that is equal to 108. 108. Done. So this is our f of a, where a is equal to minus 1 2 0 सारे एलिमेंट रखे. So our set f of a is, कौन से एलिमेंट आए देखो तो. This is equal to 0 minus 2 0 minus 2. 0 रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे. 18 28 108. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. फाइंड द वैल्यू ऑफ f of a. उसके बाद चेक करना है कि क्या वो इक्वल टू b है. चेक, दिस इज इक्वल टू सेट b. एलिमेंट्स ऑफ सेट b आर, है ना. दो सेट इक्वल सेट कब होते हैं,
when all the elements are equal. सर ने तो डरा ही दिया. So here 0 minus 2 is there, 0 minus 2 is there, 18 is there, 28 is there, 10 is there, but this minus 1 is not there. So these both sets are not equal because all the elements are not same in the both set, because minus 1 does not belong to set B, minus 1 does not belong to set A, है ना, set A भी नहीं, set f of A. तो f of A के अंदर minus 1 नहीं है, ये minus 1 f of A के अंदर नहीं है, hence both sets are not equal. बस इतना करना था ये क्वेश्चन नंबर 1 में. Done. Now students, question number 2. Very good question is there. So here function f is given as f. Now function is given in terms of roster form. So all the possible order pairs in a function are 1 1 2 3 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3. These are the order pairs belong to this function. Be a function described by the formula. This function is described by one formula, that is f of A equal to ax plus b. Function is described by this formula for some integers a and b. A and b are integers, belongs to z. So here question is determine a b. Question is determine value of a and b आपको निकालना है. चलो पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है. So here function is given. These are the order pair of this function. Function is defined by this function, by this relations ax plus b, relation between a and b. So this is our function. Here you have to find the value of this a and b. So for this function, these order pairs are given. तो order pair के लिए मैंने आपको बताया था कि if what order pair x y is there which is belongs to function f, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि ये जो होता है क्या होता है, f of x that is equal to y. तो लिखा था y equal to f of x, ऐसे फंक्शन होता है. Done. So here instead of this order pair x and y we are having 1 1. So for this 1 1 order pair, this 1 1 order pair which is belongs to f, can we write this 1, है ना, देखो x, f of x equal to y. So here f of 1 will be equal to 1, है ना, f of 1 will be equal to 1. Now for the second order pair 2 3 belongs to f. Suppose xy belongs to x, तो क्या लिखेंगे, f of x, value of the function for this x, we are getting y. Done. This is one element which is belongs to domain. This is one element which is belongs to a range of this function. तो function की value y मिल रही है कब, जब function के domain में से हम x निकालेंगे. तो x की प्लेस पर यहाँ पर element 2 है, तो यहाँ पर function की value 3 मिल रही है कब, जब x की value हम 2 लेंगे. So f of 2 equal to 3. Done. तो देखो ये दो फंक्शन ले लिए, f of 1 equal to 1 and f of 2 equal to 3. एक और ऑर्डर पे ले लेते हैं, चलो 0 minus 1, है ना, ये वेरिफिकेशन के लिए यूज करेंगे. 0 minus 1 belongs to f. इसका मतलब क्या हुआ, f of 0 की वैल्यू -1 होनी चाहिए. डन. यहाँ तक क्लियर. उसके बाद और फंक्शन इज गिवन f of x. फंक्शन f of x is ax plus b. Now what is f of 1? F of 1 is value of x, value of function at x equal to 1. So it's f of 1. Replace this x with 1. So it's a into 1 plus b. And what is the value of this f of 1? f of 1 is 1. So this is equal to 1. तो आप थोड़ा गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल रहा है. क्या इक्वेशन मिल रहा है, a plus b equal to 1. Done. So now अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो. We are given f of x equal to ax plus b. This is given. Now we are having this second result. F of 2 is 3. So what is f of 2? F of 2 is nothing but the value of this function at x equal to 2. So replacing this x with 2. So a into 2 plus b. And also we know that f of 2 is 3. Value of this function is 3. तो यहाँ पर 3 आ गया. तो इसको आप फिर से देखो तो एक और इक्वेशन मिला. That is 2a plus b equal to 3. दो इक्वेशन चाहिए. इसका रीजन क्या था, बिकॉज वी हैव टू फाइंड टू अननोन्स.
है ना, टू अननोन्स ए एंड बी, टू अननोन्स आर देयर, therefore we require we require a pair of linear equation to solve these two variables. अब इसको solve करेंगे, say this one is result 1, this one is result 2. दोनों को solution कैसे करेंगे? It's a 2a plus b equal to 3. This one is a plus b equal to 1. Minus minus minus, b से b कट गया, so 2a minus a equal to a, 3 minus 1 is 2. तो a की वैल्यू 2 आ गई, a equal to 2. Put in equation 1, so it's a 2 plus b equal to 1, hence b equal to minus 1. So this is our answer. This is our answer. A equal to 2, b equal to minus 1. लेकिन हमने एक और पेयर लेके रखी है ना, मैंने बोला था कि वेरिफिकेशन के लिए, तो हमारा आंसर सही है कि गलत है उसका वेरिफिकेशन भी करें. तो क्या बोल रहा है ये फंक्शन f of 0 equal to -1, given function f of x which is equal to ax plus b. So what is the value of f of 0? f of 0 निकाले तो क्या होगा, a into 0 plus b. What is the value of a? A is 2, 2 into 0 plus b, b is -1. So this is equal to -1. तो f of 0 हमारा -1 आ गया for a equal to 2 and b equal to -1 के लिए, तो ये वेरीफाई हो गया. Hence we can say our answer is right. Done. So answer is find a and b. तो आपका आंसर होगा a equal to 2 and b equal to -1. Clear friends? So this one is very good question. इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके रखो. Most important. Polynomial function. Now question number 3 is find the domain of real function. Find the domain of real function. अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि रियल फंक्शन क्या होता है ना. वी हैव डिस्कस रियल फंक्शन and real valued function. So what is real function? Real function is the function in which domain and range, है ना, domain and range both are real numbers. ऐसे लिखते थे फंक्शन f from a to b, तो a भी हमारा रियल नंबर होगा, b भी हमारा रियल नंबर होगा. तो here we have to find the value of the domain for the function. Real function is given f of x, and that function is x square plus 3x plus 5 divided by x square minus 5x plus 4. इसका डोमेन निकालना है बच्चों. You have to find the domain of this function. तो पहले तो पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है. ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आ गया तो इसको रिवाइज कर देते हैं. सो व्हाट इज डोमेन, है ना, ये जो फंक्शन है ना, गिवन फंक्शन जो ऑपरेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसके लिए सपोज हमको डोमेन डिफाइन करना है, तो व्हाट इज डोमेन. So domain of this function f of x is nothing but the value of x for which our f of x is defined, है ना. शॉर्ट एंड सिंपल. डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो डोमेन था वहां पर set of all the first element of the order pair present in a relation, or set of all the first element of the order pair present in a function. तो फंक्शन का डोमेन मिलेगा. तो यहाँ पर तो कुछ ऑर्डर पेयर जैसा दिख नहीं रहा है, तो डोमेन कहाँ से लाएंगे. तो डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स की वो सारी वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, डन, उसको हम बोलेंगे डोमेन. तो देखो फंक्शन डिफाइन होने के लिए हियर विच फंक्शन इज गिवन, फंक्शन इज रियल फंक्शन. सपोज ये फंक्शन को हम ऐसा बोलते हैं, फंक्शन f from set a to set b, and function f is real function. That means both the domain and range are real numbers. ये दोनों रियल नंबर होंगे. डन, सेट ऑफ रियल नंबर होंगे. तो यहाँ पर फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, तो फंक्शन x की सारी वैल्यू पर डिफाइन होगा, क्योंकि x कहाँ से आएगा, डोमेन पर. लेकिन x की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जहां पर ये फंक्शन डिफाइन ना करता हो, है ना. ये देखो रेशनल फंक्शन है, तो हमें पता है कि रेशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. डन. तो इसका सपोज हमें डोमेन निकालना है, दैट मींस ये फंक्शन x की कौन सी वैल्यू पर डिफाइन है, उसके लिए हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर. सो हियर डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. ये डिनोमिनेटर आ गया फंक्शन का. इसका फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, सपोज दिस इज इक्वल टू 0, so it's x square
minus 4x minus x plus 4 equal to 0. Therefore, this one is x common. It's a x minus 4 minus 1 common. X minus 4 equal to 0. Therefore, this one is x minus 4. This one is x minus 1 equal to 0. Therefore, we are getting two values of x. X equal to 4 and x equal to 1. देखो ये x की ऐसी दो वैल्यू आ गई जिस पर हमारा फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो रहा है. कौन सी दो वैल्यू पर? x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 1. यहाँ पर आप x इक्वल टू 4 पुट करो तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 4 जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो गया. अगर किसी भी रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या वो फंक्शन डिफाइन होता है ना? 1/0 इज नॉट डिफाइंड. सो आवर फंक्शन f of x इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 4 बिकॉज x इक्वल टू 4 के लिए ये फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है. तो x की चार वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है. और x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4 प्लस 1 जीरो हो गया. तो ये x की ऐसी दो वैल्यू है जिस पर हमारा ये फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है. डन. सो हियर वी कैन से द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज इट इज रियल वैल्यू फंक्शन, सॉरी इट इज रियल फंक्शन. तो रियल फंक्शन के लिए डोमेन रियल नंबर ही होते हैं ना, सारे रियल नंबर, लेकिन दो रियल नंबर को छोड़ के. कौन से? ये दोनों 4 and 1. सो माइनस 4 and 1, ये दोनों रियल नंबर को छोड़ के सारे रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइन है ना. फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x which belongs to this R, our function is defined except two values of x which are nothing but the 4 and 1. Clear? So this is how we can find the domain of this real function. Question number 4. Again, find the domain of function. Here function f of x is 1 upon square root of x minus 2. है ना, ये 4 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर भी लिख देते हैं. 5th नंबर फंक्शन f of x equal to square root of 4 minus x square. डन. तो ये दोनों का हमें डोमेन निकालना है. तो कैसे निकालें? देखो, व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या है? x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है. तो हमें चेक करना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो यहाँ पर ये फंक्शन को देख के पता चलेगा कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. और ये जो स्क्वायर रूट आ गया, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होंगी, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो सारी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सपोज स्क्वायर रूट के अंदर x आ गया तो x कैसा होना चाहिए? x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमने माइनस साइन ले ली तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होगा, है ना. क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं सेट ऑफ, जो बात कर रहे हो सारी रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नेगेटिव आ गया तो ये फंक्शन हमारा रियल फंक्शन नहीं होगा. तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो कैसे होगी? पॉजिटिव होगी. और यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो जीरो भी नहीं होगा. तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? सिर्फ x ग्रेटर देन 0 ही होगा. डन. तो डिनोमिनेटर की बात करें तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0. दैट मींस x मस्ट बी ग्रेटर देन 2. x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी वो सारी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है. अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हो गई, है ना, सपोज x इक्वल टू 1 आ गया तो 1 माइनस 2 क्या होगा? माइनस 1. तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, है ना, दिस इज डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर. तो रियल नंबर पर डिफाइंड नहीं है और फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस नॉन रियल नंबर. डन. सो हियर ये आपकी रेंज आ गई. सो रेंज ऑफ फंक्शन, सॉरी domain of function is nothing but the all real numbers, है ना, all real numbers greater than 2. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इंटरवल में, और यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा 2 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक. तो 2 to infinite is the domain of this function. आ गया समझ में, है ना. स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी है वो कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. हालांकि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो 0 भी एक्सेप्टेड नहीं है, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखना है और हमें फंक्शन का डोमेन मिलेगा. डन. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है, तो स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ पर 0 एक्सेप्टेड है
क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है ना, स्क्वायर रूट क्वांटिटी हमारी न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में 0 चलेगा, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन। इसको सॉल्व करें तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन चेंज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। डन। अभी ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए है ना आपको इक्वेशन कंसीडर करना है। क्या करना है? इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लो, इनइक्वालिटी को थोड़े टाइम पर भूल जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, हेंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स आ गया आपका प्लस और माइनस 2, एक्स आ गया आपका प्लस और माइनस 2। तो ये प्लस और माइनस 2 आ गया। उसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये नंबर लाइन सबको पता है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक जाती है, और उसके ऊपर दो नंबर जो हमारे आए ना एक्स के वो रिप्रेजेंट करो। यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा। डन। यहाँ पर इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू वाली है, तो देखो जैसे ही -2 +2 रखा तो हमारी जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये बीच वाला पार्ट। डन। अभी ये इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों पार्ट में से एक एक नंबर लेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर ले लेते सपोज -3, यहाँ पर एक नंबर ले ले सपोज 0 और यहाँ पर एक नंबर ले ले +3। तो कौन सा नंबर ये इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा है? देखो सपोज -3 लेंगे तो -3 स्क्वायर -4, तो 9 - 4 लेस देन इक्वल टू 0, 5 लेस देन इक्वल टू 0। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो ये वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन नहीं है। डन। अभी ये +3 ले ले, तो +3 यहाँ पर पुट करें तो एक्स स्क्वायर, इट्स 3 स्क्वायर -4, so it's 9 - 4 अगेन 5 आ गया, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाला रीजन भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। इसके बीच वाला ये ले ले 0, तो क्या होगा 0 स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0, -4 लेस देन इक्वल टू 0। यस, 2 आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। और हालांकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, तो 2 को भी कंसिडर करेंगे, -2 को भी कंसिडर करेंगे। सो अवर डोमेन इज, है ना, ये जो फंक्शन है उसका डोमेन आएगा, डोमेन is nothing but the closed interval -2 to 2, closed interval. So this is how we can find domain of this square root function. Clear, students?